Hello everyone. So today we are going to discuss about a brief introduction about the human body, about its anatomy and physiology, certain different types of anatomy and physiology, about certain different organ systems, their structure and their functions, along with certain introductory mechanisms that are involved in the physiology of the body and certain terminologies or certain definitions that are used in anatomy and physiology and are crucial to be discussed before further proceeding, or we can say before further discussing about the human anatomy and physiology. So let's start with the definitions of anatomy and physiology. We are going to discuss about a complete subject, human anatomy and physiology. So we should be aware about the definition of anatomy and physiology की anatomy और physiology होते क्या हैं. So what is anatomy? Anatomy is the science of body structure and the relationship among them. या हम कहें study of the nature of the body and physical relations involved between them. यानी कि जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होगी, द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनाटमी, कि किस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है वो उसकी एनाटमी है. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी है क्या? फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क, द स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वे दे कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. फिजियोलॉजी यानी कि जो फंक्शंस हैं, जहाँ किस तरह से हमारी बॉडी फंक्शंस कर रही है, किस तरह से एक पार्ट दूसरे पार्ट से इंटरलिंक्ड है, कैसे वो मिल काम कर रहे हैं, उस स्टडी को या उस साइंस को हम बोलेंगे फिजियोलॉजी. तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की. There are several types of branches of anatomy and physiology. We will discussing about one by one in this slide. So the one is embryology. Embryology is the study of the first 8 weeks of embryo. We can the study of embryo of the human egg is called embryology. Developmental biology, the study of the complete development of individual from fertilization to that is called its developmental biology. Cell biology यानी कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करना हो गया. सेल बायोलॉजी. हिस्टोलॉजी, the microscopic study of tissue is called is histology. The next is gross anatomy. The complete anatomical examination of a body is called its gross anatomy. Systemic anatomy means the anatomy of a specific systems is called systemic anatomy. Then regional anatomy. The anatomical study of a specific region of the body is called regional anatomy. Surface anatomy, the name, the study of the outer surface of the body is called surface anatomy. Imaging anatomy जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस के थ्रू जो एनाटमी को स्टडी करेंगे, जैसे कि MRI और CT स्कैन्स, इनको हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटमी. फिर हमारी है पैथोलॉजिकल एनाटमी. इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटमी द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल चेंजेस इन द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटमी. तो ये हमारे कुछ थे branches of anatomy. Now we will further proceed about the branches of physiology. The very first thing, neurophysiology. The function of the neurological system of our body is called neurophysiology. The second one is endocrinology. The study of hormones, we can say the study of functioning of different hormones is called endocrinology. The third one is cardiovascular physiology. The study of heart, blood vessels is called cardiovascular physiology. यानी कि cardio means heart, vascular means vessels. The next one is immunology. The study of immunity mechanisms, the study of body defense against disease causing agent is called its immunology. The next one is respiratory physiology. Respiratory means the study of the functioning of air passage and the study of lungs is called respiratory physiology. Renal physiology means the study of the functions of renal excretory system is called renal physiology. Exercise physiology, we can say the sports physiology. The changes occur in the cell and the organ functions during the muscular activity or during the sports activity is called exercise physiology. And the next one is pathophysiology. The functional changes, we can say the changes that occur during a disease condition is called pathophysiology. So this is all about the different branches of anatomy and physiology. I hope
you will understand about the different branches of anatomy and physiology. There are different levels of structural organization in a human body, जिन्हें हम 6 डिफरेंट लेवल्स में क्लासीफाई करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज केमिकल लेवल, जिसके अंदर जो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ये वाले मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो मिलके एक सेल को बनाते हैं. तो जो नेक्स्ट लेवल होगा हम उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, which consists of different cells having the different functions and structures. These cells then further join together to form a tissue. 4 तरह के हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज. सो द नेक्स्ट लेवल इज टिश्यू लेवल्स, एंड द फर्दर दिस टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक ऑर्गन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा. तो जो फर्दर जो हमारे ऑर्गन्स हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टम लेवल, जिसमें कि एक स्पेसिफिक सिस्टम जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को लेकर जो कुछ बने उसको बोलेंगे हम सिस्टम लेवल. जैसे हम बात करें हमारा जो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गन्स, उनके काम क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, तो हम उनको बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. जब बहुत सारे ये सिस्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. हमने डिस्कस करा कि जो हमारा 5th लेवल हम सिस्टम लेवल बोलते हैं, जिसे विच इज़ फर्दर कंबाइंड टू फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म. सो there are different types of systems levels in our body. We can say that there are various different body systems inside a human body. हम कहें तो टोटल 11 यानी कि अप्रोक्स 11 जो है हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, जिनको हम अभी एक बाय एक डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स. वी कैन दे द external systems that consist of the largest organ of the body is called skin. इसके अंदर क्या क्या है? It consists of skins and its associated structures such as hairs, fingernails, toenails, sweat glands and oil glands. What are their main functions? Their main function is to protect the body, regulate the temperature, elimination of the waste in the form of sweats, the synthesis of vitamin D. The skin is the last space for the synthesis of vitamin D. And the next very important, it provides us the sensation towards the different stimulus such as cold, pain, temperature, warmth, and also provides insulation to the body. The skin is the largest organ present in the human body. So the next body system is our skeletal system. It consists of bones, their adjoining joints, and certain cartilages that are associated with bones and joints. What are their main functions? इनके कुछ मेन फंक्शंस हैं. दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, आल्सो प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर द प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ मसल्स विद द बोन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हाउस सेल्स दैट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, यानी कि उन सेल्स को स्टोर करते हैं जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और कुछ मिनरल्स और लिपिड्स को भी ये स्टोर करते हैं. So the next body system is muscular systems. Means वो सिस्टम जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम्स. इसके कंपोनेंट्स होंगे हमारे बेसिकली स्केलेटल मसल टिश्यूज, ओके, कार्डिक मसल टिश्यूज और स्मूथ मसल टिश्यूज, जो इनसे बने होते हैं, यानी कि मसल्स जो हैं इन तीनों से बनी हुई होती है. तो इन तीनों के कंपोनेंट्स को हम तो बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. हमने से लिखा हुआ है स्पेशली स्केलेटल मसल्स टिश्यूज, मसल्स दैट अटैच टू द बोन्स, और कुछ अदर टिश्यूज जैसे कि स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स. इनके फंक्शंस हैं, दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दे हेल्प इन प्रॉपर वॉकिंग एंड प्रॉपर मूवमेंट, आल्सो प्रोवाइड द एग्जैक्ट पोस्चर दैट द पोस्चर्स टू द बॉडी. जो हमारा नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है वो हमारा नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो वी नो द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट organ of the body which regulates all the functions. So the nervous systems is a important body systems which performs numerous functions such as generation of action potential, regulation of all the body activities, detection of certain changes in the internal and external environment with the help of certain sensory organs, and also contraction and relaxation of muscles, and also help in the secretion of certain glands,
यानी कि जो ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो गई है उसको कंट्रोल करता है। जो नर्वस सिस्टम के हमारे कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं वो हैं, और साथ साथ जो है कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम ईयर्स, आई या टंग कहें वो हैं। So, the body system after the nervous system is our endocrine system. Endocrine means the hormone producing glands, यानी कि जो सिस्टम्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे कंसिस्ट हैं पाइनियल ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल ग्रैनुला, पैनक्रियाज, फीमेल के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर टेस्टिस, और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कुछ अलग अलग बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इफ़ वी कॉल देम इन अ सिंपल वे, द एंडोक्राइन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशंस। हमने अभी फिगर में देखे तो बहुत अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी थ्रू हार्मोन्स। हर एक हार्मोन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारे थायराइड हार्मोन्स है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, पैनक्रियास से लीवर्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज रिप्रोडक्शन या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, हाइपोथैलेमस मेन पार्ट है ब्रेन का तो उसमें मदद है, और बहुत सारे सिक्रेटिंग हार्मोन्स की रिलीजेस में मदद करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। तो बेसिकली ये फंक्शंस जो है डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है बॉडी की प्रॉपर रेगुलेशन और मेंटेनेंस हो सके। सो अगर हम सिंपल बोलें, द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज टू रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज थ्रू द सिक्रेशंस ऑफ different hormones. So the next very important body system is cardiovascular system. Cardio means heart and vascular means vessels. So the main components of this cardiovascular system is heart and blood vessels. तो अगर हम जो हमने लिखा हुआ है उसमें देखें, the components of cardiovascular system are blood, heart and blood vessels. पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। इसके अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं, जो येलो कलर जो ब्लू कलर से देखें वो हमारी सारी वेन्स हैं, और जो आर्टरीज हैं वो हमारी रेड कलर से हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, द हार्ट पंप्स द ब्लड so that the blood can circulate in the whole bodies with the help of different veins, capillaries and arteries. The second most important function of our cardiovascular system is transportation of oxygens with the help of blood so that the different nutritions can be provided to cells, and the movement of oxygen and carbon dioxide also help in the excretion of waste from the cells. जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो जो है कुछ बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स जो अपने साथ लेके चलता है, जिसकी वजह से जो क्या है प्रॉपर जो है पूरे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं वो सर्कुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड बेस बैलेंस है वो भी बना रहता है। तो प्रॉपर बॉडी की मेंटेनेंस जो है बॉडी फ्लूइड्स का जो फंक्शन है, एसिड बेस लेवल को मेंटेन करना या न्यूट्रिशन जो ब्लड का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वो जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मदद से होता है। So the next body system is our lymphatic systems. Lymphatic system consists of lymphatic fluids, vessels, spleen and thymus. Certain lymph nodes, the tonsils and the cells that carries our immune responses such as B cells, T cells and other certain cells, the thymus cells जो है हमारी बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं या उनकी फंक्शनिंग में मदद करती हैं, वो सेल्स जो हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स का एक पार्ट है। लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, ये है इनका जो मेन फंक्शन है। ये हमारी बॉडी में जो है डिफेंसिंग मैकेनिज्म्स परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी को आउटर माइक्रोब से डिफेंस यानी कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। ओके,
हम जो बात करें बॉडी में अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स फैले होते हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, थोरेसिक डक्ट है, टॉन्सिल्स हैं, ये सारे जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। इनमें जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो एज अ ब्लड की तरह जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, they help in the maturation and proliferation of beta cells and T cells that protect against disease causing microbes. So the next body system is our respiratory systems. The system responsible for the respiration is called respiratory systems. Components इसके कौन कौन से? सबसे पहला लंग जो मेन कंपोनेंट है रेस्पिरेशन का। द सेकंड इंक्लूड सर्टेन डिफरेंट एयर पैसेजवेज जिनके थ्रू जो है एयर मूव करती है, जैसे हम बोले फेरेंक्स हमारा थ्रोट, लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स, ट्रैकियम वी कैन आल्सो कॉल इट दैट विंड पाइप, एंड सर्टेन ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स जो बाद में जाके लंग्स के साथ मिल जाती हैं, उनको ब्रोंकियल्स या ब्रोंकियल्स को हम भी कंपोनेंट मानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में मदद करता है। जो एयर से हमारी जो है ऑक्सीजन आ रही है उसको इनहेल करके लंग्स के अंदर भेजता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड से एयर की मदद से बाहर भेज देता है। एसिड बेस बैलेंस में भी मदद करते हैं। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है जो हमारी बॉडी में जब एयरवेज आ रही हैं, जो हमारी एयरवेज जो हमारे लैरिंक्स के अंदर आ रही है, हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर आ रही है, उसकी जो है साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे हम क्या बोलेंगे वोकल कॉर्ड्स की मदद से साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन सिस्टम इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स विच हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, हम फिगर से देखें तो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक का जो हमारा पार्ट होता है हम उसको अपना बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT along tube that include mouth, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine and its anus. ओके, तो हम देखें माउथ से हमने खाना खाया, फूड पाइप से खाना अंदर स्टमक में गया, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से बाहर आ गया। ये सारे कंपोनेंट जो हमारे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन जो हमारा है फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एनस की मदद से एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। अगर हम बात करें, कुछ और भी ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फूड डाइजेशन में मदद करते हैं, जैसे कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ये जो है डायरेक्ट डाइजेशन में मदद नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली फूड डाइजेशन में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, इसलिए हम इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स में इंक्लूड करते हैं। सो जो 10th हमारा बॉडी सिस्टम है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। जो ट्रैक है यूरिनरी सिस्टम का, हम उसको यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी से फ्लूइड्स को या एक्स्ट्रा वेस्ट को एलिमिनेट्स करता है, सो दैट आवर बॉडी कैन रेगुलेट्स द प्रॉपर वॉल्यूम। हमारी बॉडी का जो वाटर वॉल्यूम है या बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। ओके, एसिड बेस बैलेंस बना रहे, बॉडी का मिनरल बैलेंस बना रहे, और ब्लड सेल्स की रेगुलेशन अच्छे ढंग से होती है। सो वी कैन से द urinary system consists of kidney, urethra, urinary bladder or urethra, and its main function is filtration of fluids so that a proper body fluid level is maintained within the bodies. Apart from it, it also excretes certain waste out of the body in the form of liquid. The last body system, which is also an important body system, is our reproductive systems. It basically consists of gonads, the organs which are responsible for the reproduction of offsprings, which are responsible in the fertilizations, or the organs which consist of gonad cells are the major component of
reproductive systems. It consists of gonads such as testes in males, ovaries in females, and certain other associated organs such as uterine tubes, fallopian tube, uterus, vagina, and mammary glands in female. Whereas in males, the other reproductive organs are epididymis, ductus, vas deferens, semivesicle, prostate, and penis. फिगर में दोनों के अलग अलग जो है ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है या बताया गया है कि कौन से उनकी एनिमी है या उनका है. तो उनके फंक्शंस अगर हम बात करें, गोनाड्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, स्पर्म सेल्स या oocytes की बात करते हैं, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. गोनाड्स जो हैं साथ के साथ कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, हमने डिस्कस किया था. Testes and ovaries are the two hormones. So the reproductive systems also produces also releases certain hormones that regulates the reproductions and other body process associated with the storage of gametes. And the mammary gland, another reproductive gland in the female, is responsible for the production of milk. So there are total 11 different body systems in our body which we have discussed in a series, which have different organs, and the different organs perform different functions. So we have total 11 body systems in our body. So after the discussion about the different body systems and the characteristics of the different body systems, we will discuss about the overall characteristic of a human organisms. The different body systems join together to form organisms, or we can say a human. So now we will discuss about the overall characteristic of a living organisms. There are basically 6 different basic life processes that are required in the living organisms, which can be done by the 11 discussed body systems. The very first thing is metabolisms. The sum up of the certain chemical reactions that occur in our body is metabolic reactions. They can be either catabolic or anabolic. The digestion process, which is the important process which help in providing us energy, is a metabolic process. It can be either catabolic or anabolic. अगर कैटाबोलिक मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसमें होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो जाती है स्मॉलर वंस के अंदर. हम एग्जांपल की बात करें, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, वेयरएज एनाबोलिक प्रोसेस जो है वो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से. हम बात करें, कैटाबोलिक होता है बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल्स में बनना. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो the production of amino acid is an anabolic process. So the other characteristics of a living organism are responsiveness. That means the ability of a body to detect and respond to the changes. If the temperature of the body increases, certain action of the body will produce it so that the temperature of the body can be reduced. The third most important characteristic is movement, कि किस तरह से बॉडी जो मूव करेगी. मसल्स और स्केलेटल सिस्टम्स जो है मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं. द मूवमेंट मीन्स द मोशन ऑफ होल बॉडी. द फोर्थ वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ. Various hormones are responsible for the growth of the whole body. We have discussed that thyroid gland is responsible for the growth and proper, we can say the proper growth of the body. The release of certain growth hormones, somatotropins, are also responsible for the proper growth of the body. The next important characteristic is differentiations. We can have the development of specialized cells from the unspecialized group of cells. यानी कि different cells का बनना so that they can produce different activities is the one of the important characteristic of living organisms. The last but not the least important characteristic of our living organism is reproductions. कि किस तरह से नए नए सेल्स की फॉर्मेशन होनी पुराने सेल से, यानी कि जो सेल डिवीजन होनी, और वी कैन से द रिप्रोडक्शन, यानी कि नए नए ह्यूमन्स या नए नए ऑर्गेनिजम्स का
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मदद से रिप्रोडक्शन होना, यानी कि नए नए ऑफ स्प्रिंग्स का पैदा होना भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो this is about our very first part. We have divided our introduction to human body into two different parts. In the first part, we had discussed about the different branches of anatomy and physiology. We had discussed about the different body systems. We had discussed about the different characteristics of living organisms. So we will continue with this introduction part about the human body. We will discuss different aspects, different terminologies and certain different mechanisms in the next video lecture. Till then, thank you.